ठीक है, लिटिल ब्रेन होता है, इट इज नियर अबाउट 150 grams in weight. Cerebellum is what? It is a hind part of hind brain, lies in the posterior cranial fossa just behind pons and medulla and separated with the fourth ventricle. Ventricle कितने होते हैं? कैसे कैसे? 2 lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle. क्या फंक्शन होता है वेंट्रिकल्स का? प्रोडक्शन और सर्कुलेशन में ये हेल्प करेगा. प्रोडक्शन कहाँ होगा? मेनली choroid plexus of lateral ventricle में होगा, and then it comes to the third ventricle, then fourth ventricle and circulated towards the brain via subarachnoid granulation and villi and spaces. आओ जल्दी. Then cerebellum क्या है? जस्ट अभी फोटोग्राफ देखना तुम, जस्ट ऐसा है, बॉक्स लाइक है. इट हैज 3 parts. 3 parts में you have 2 cerebellar hemisphere and these are connected by this diagram. Next slide में. See, this is the cerebellum. These 2 are the cerebellar hemisphere. Cerebral hemisphere is a part of cerebrum, while the cerebellar, these 2 are the 2 cerebellar hemisphere and these are connected by a worm-like structure that is known as vermis. So cerebellum क्या है? What is cerebellum? It is a part of hind brain, lies in the posterior cranial fossa, covered by stentorian cerebellar. How many folds of dura mater are present? 2 only. Tell the name. Falx cerebri, falx cerebelli and stentorian cerebelli and diaphragma celli. अब एक जना उठो, इस गेट को बंद. ये आपको ये खूब सारी फिशर्स दिख रहे हैं. These are the fissures present on the surface of cerebellum. So basically cerebellum has 3 parts, 2 cerebellar hemisphere. These are connected by a worm-like structure that is known as vermis. ठीक है. It has 2 surface. Firstly आपको दिख रहा होगा, this is superior surface और inferior aspect से आप देखेंगे तो this is inferior surface. 3 lobes are also there. One is anterior lobe, second is posterior lobe and third is flocculonodular lobe. अभी चलेंगे अपन डिटेल में, एक बार इनको आने दो, इसलिए मैं बेसिक बता रही हूँ. तो क्या हुआ? इट हैज 3 parts. कौन कौन से? 2 cerebellar hemisphere and the 1 vermis. 2 surfaces कौन कौन सी? Superior surface and inferior surface. 3 lobes, anterior lobe, posterior lobe and flocculonodular lobe. ठीक है, इतना हो गया. And it has 3 main fissures, although it is having numerous fissure on the surface of cerebellum, but mainly you have 3 fissure. 3 fissure क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे lobes में. तो जो अपन बात करें anterior lobe, posterior lobe and flocculonodular lobe, these are separated by a 3 fissure. 3 fissure को क्या बोल रहे हैं? First is anterior fissure or fissura prima. First see, this is the primary fissure or anterior fissure or fissura prima. ये क्या कर रहा है? It divides the superior surface into 2 lobes. One is anterior to it, one is posterior to it. So anterior to it there is a lobe that is known as anterior lobe. ठीक है, समझ में आया ये बात? तो जो ये lobes बने हैं वो कैसे बने हैं? Through this fissure. First fissure is fissura prima, that is also known as primary fissure, which divides the superior surface into 2 lobes, anterior lobe and posterior lobe. Anterior to it there is a anterior lobe, posterior to it there is a posterior lobe. Another fissure is also there. This is known as horizontal fissure. Horizontal fissure क्या करेगा? It divides the cerebellum into superior surface and inferior surface. क्लियर है ये आपको? So just like that it is. ये देखो ऐसा है cerebellum आपके पास. जो ये मेरा एलिवेशन पार्ट दिख रहा है ये है वर्मिस. ठीक है, एंड जो ये बीच में गैप आ रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल फिशर. अब मैं जब इसको पूरा ओपन करूंगी तो नेक्स्ट जो पिक्चर आपके पास आएगी दैट इज ऑफ दैट. तो फर्स्टली ये क्या है आपके पास? ऐसे लोकेटेड है इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. ये एंड ये दीज आर द सेरिबेलर हेमिस्फीयर. ये जो मीडियन स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द वर्मिस. एंड वर्मिस पूरा सुपीरियर सरफेस पे भी जाएगा और इंफीरियर सरफेस पे भी जाएगा. एंड 2 फिशर्स मेन कौन कौन से आपने देखे? फर्स्ट इज फिशुरा प्राइमा और एंटीरियर फिशर एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल फिशर. थर्ड वन अनदर फिशर इज देयर दैट इज नोन एज पोस्टीरोलैटरल फिशर. वो क्या करेगा? पोस्टीरोलैटरल फिशर प्रेजेंट हियर.
हियर इज द लोकेशन ऑफ पोस्टीरियर लैटरल फिशर. ये क्या करेगा, इट डिवाइड्स द पोस्टीरियर सरफेस को सेपरेट करेगा विद द फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब. So behind to posterior lateral fissure there is another lobe that is known as flocculo-nodular lobe. So three lobes are what? बोलो. Anterior lobe, posterior lobe and flocculo-nodular lobe. Three main fissure जो conspicuous होते हैं, अच्छे से दिखेंगे आपको इसकी surface पे. One is fissura prima, second is horizontal fissure, third is posterior lateral fissure. Anterior fissure or fissura prima separates the anterior lobe with the posterior lobe. Posterior lobe superior surface पे भी होगा और inferior surface पे भी होगा. Similar to that, ये आपका जो posterior lobe चल रहा है, anterior fissure suppose इधर आया तो posterior lobe पूरा पीछे तक आएगा और नीचे की साइड में एक और lobe होगा, that is the flocculo-nodular lobe, and which is separated from the posterior lobe with the posterolateral fissure. So cerebellum has three parts. Two cerebellar hemisphere, firstly. Two cerebellar hemisphere joined by a median fissure, median structure, that worm-like structure that is known as vermis. And the three fissures are there: anterior fissure, posterior fissure, and क्या टाइम हो रहा है बेटा? अभी सुबह सुबह प्रिंसिपल ऑफिस ओपन भी नहीं हुआ होगा. चाहिए. Horizontal fissure separates the superior surface from the inferior surface, and posterolateral fissure separates the rest of cerebellar hemisphere with the flocculo-nodular lobe. अच्छा, अब एक चीज और, cerebellum आपको कैसे पढ़ना है? फाइलोजेनेटिकली, इवोल्यूशनरी इसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उस अकॉर्डिंगली आपको cerebellum को रीड करना होता है. फर्स्ट जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स थे और एम्फीबियन फिशेस, इसमें सेरिबेलम का एक पार्ट होता था दैट इज नोन एज आर्की सेरिबेलम. ठीक है, आर्की सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम एंड नियो सेरिबेलम. तो फर्स्ट जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स थे जिसमें लिम्स नहीं थे, सिर्फ ट्रंक मसल्स होती थी, so that time only archy cerebellum was there. तो archy cerebellum कौन सा पार्ट डिनोट कर रहा है इसमें? flocculo-nodular lobe. क्लियर है इतना? आगे और डिटेल में चलेंगे, जस्ट मैं एक बता रही हूँ तुम्हें, आगे तुम्हें पढ़ना है पूरा, क्योंकि इस अकॉर्डिंगली आपको इसके फंक्शन, इसकी अप्लाइड और ये सब होगा. न्यूक्लियस भी आर्की सेरिबेलम का सेपरेट है. कनेक्शंस आर आल्सो देयर ऑफ द आर्की सेरिबेलम. तो आर्की सेरिबेलम मेनली किस कंसिस्ट ऑफ, क्या फंक्शन करेगा? बैलेंस का फंक्शन करेगा ऑफ द ट्रंक मसल्स. आगे से अगर मेरी 9 बजे क्लास होगी तो आप 9 बजे तक आएंगे. बहुत डिस्टरबेंस होता है, बार बार वही चीजें रिपीट कर रही हूं मैं तब से. पीछे और थे क्या तुम्हारे? सुनेंगे भी नहीं. पीछे और स्टूडेंट्स हैं क्या? नहीं है? प्रेरणा एक बार इसको क्लोज कर दो और अब खड़े रहना, बहुत देर हो गई. तो फर्स्ट जो एंशिएंट था इवोल्यूशनरी, जो ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम वाज आर्की सेरिबेलम. तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्लॉक्यूलो-नोडुलर लोब है दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्की सेरिबेलम. देन पेलियो सेरिबेलम कब बना? जब आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल बने, उनमें लिम्स डेवलप होने लगे, बिकॉज लिम्स का कोऑर्डिनेट करने के लिए जो ट्रंक की मसल, आपकी लिम्स की मसल है, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके पोस्चर के लिए आपके पास आर्की पेलियो सेरिबेलम आया. देन नियो सेरिबेलम कब आया? जब मैमल्स आ गए. उसमें क्या है कि जो सेरिबेलम के मेन फंक्शंस जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट, ये क्या करता है? पोस्चर मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा. तो बैलेंस इज द फंक्शन ऑफ दिस आर्की सेरिबेलम. ठीक है, जो मसल्स को कंट्रोल करेगा, टोन ऑफ मसल, लिम्स की मसल को कंट्रोल करेगा, वो होगा पार्ट फंक्शन पेलियो सेरिबेलम का. और जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल टोन है, पूरा जो स्किल्ड मूवमेंट है, उनको जो कंट्रोल करेगा दैट विल बी नियो सेरिबेलम. तो ये फंक्शन कहाँ आया था? जब हायर मैमल्स डेवलप होने लग गए थे. ठीक है, तो फर्स्ट आर्की है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स थे, जहाँ लिम्स नहीं थे, ओनली ट्रंक मसल वाज देयर. तो वहां पर आपके पास आर्की सेरिबेलम फंक्शन क्या करता था? बैलेंस का फंक्शन करता था, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता था. लिम्स डेवलप हुए तो आपके पास पैलियो सेरिबेलम आया. वो क्या करेगा? जो मसल टोन को रेगुलेट करके रखता था लिम्ब मसल की. ठीक है, इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करता था लिम्ब मसल का, नॉट ट्रंक मसल का. देन नियो सेरिबेलम आया. वो क्या करेगा? जो हाईली स्किल्ड मूवमेंट जो अपने में होते हैं उनको कौन मेंटेन करके रखेगा? नियो सेरिबेलम. तो इस पूरे सेरिबेलम में पार्ट्स है. अभी मैंने तुम्हें सिर्फ आर्की बताया. आर्की में क्या है इंक्लूडेड? फ्लॉक्यूलो-नोडुलर लोब.
अब न्यू में और पेलियो में अपन अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सेरिबेलम में भी अलग अलग लोब्स होते हैं, इस लोब्स के नाम होंगे, वो आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन, ठीक है। वर्मिस को भी डिवाइड किया हुआ है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फिशर्स, बट मेन फिशर्स आपको याद रखने हैं, दैट इज फिशुरा प्राइमा, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड पोस्टीरियर लैटरल फिशर, 3 लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ये तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। क्लियर है इतना सबको? देन नेक्स्ट चलो, अब उसके बाद अपन आते हैं, ये मैंने पूरा तुम्हें बता दिया है इसमें फिशर्स और वर्मिस के बारे में। जस्ट सी द डायग्राम, दीज आर द सुपीरियर सर्फेसेस, ये पूरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, सुपीरियर एस्पेक्ट में दिख रहे हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, दीज आर सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड दैट इज कनेक्टेड बाय अ वर्मिस। नेक्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में आपको सेकंड में वही जो मैंने आपको बताया, दिस इज प्राइमरी फिशर ऑफ फिशुरा प्राइमा एंड एंटीरियर टू इट हियर इज अ एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर टू इट देयर इज अ पोस्टीरियर लोब। ये आप देख चुके हो पूरा। देन सी, हाँ, जब आप सेरिबेलम को कट करोगे, आइए जल्दी आइए, नेक्स्ट टाइम याद रखना है, मैं नहीं एंटर करने दूंगी। जब आप सेरिबेलम को कट करोगे तो आपके पास आउटर मोस्ट लेयर में सेरिबेलर कॉर्टेक्स होगा एंड दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होगा और अंदर मेडुला में व्हाइट मैटर होगा। स्पाइनल कॉर्ड में क्या था? उल्टा था। उल्टा क्या था? outer white matter and inner gray matter. Here is the outer gray matter and inside to it there is a white matter, ठीक है। white matter का जो उसका पैटर्न होता है like a branches of tree, so this pattern is known as arbor-vitae pattern। क्या बोलते हैं इसको? arbor-vitae pattern, because white matter of cerebellum is just like a branches of tree, so it is known as arbor-vitae pattern। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आउटर जो दिख रहा है दैट इज द ग्रे मैटर एंड इनर टू इट देयर इज अ व्हाइट मैटर एंड दीज आर द ब्रांचेस ऑफ दिस व्हाइट मैटर, सो इट इज द arbor-vitae पैटर्न। क्लियर है इतना? नेक्स्ट चलो, सेम वही है। अब एक चीज आपने पढ़ी भी होगी शायद, जो सेरिबेलम है दैट इज कनेक्टेड विद द मिड ब्रेन, pons एंड मेडुला थ्रू bundles of white matter and these bundle of white matter are known as cerebellar peduncle। ये पता है सबको? तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल क्या करेगा? कनेक्ट करेगा सेरिबेलम को मिड ब्रेन से, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल कनेक्ट करेगा सेरिबेलम को पॉन्स से एंड द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो होगा दैट इज मेडुला से कनेक्ट करेगा। तो ये आपको जो ये क्या है ये पेडंकल? दीज आर बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स। अब यहीं पर एक चीज बताओ, व्हाट इज व्हाइट फाइबर? क्या होता है व्हाइट फाइबर? एक्सॉन्स मेनली। अब मुझे बताओ ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स विद इन द सीएनएस इज नोन एज ट्रैक्ट, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स आउटसाइड द सीएनएस इज नोन एज नर्व। कलेक्शन ऑफ जो आपका न्यूरॉन है, नर्व सेल बॉडी है विद इन द सीएनएस इज नोन एज क्या? न्यूक्लियाई एंड आउटसाइड द सीएनएस इट इज नोन एज कैनियो। ये क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको रियल इमेज है सेरिबेलर पेडंकल। जब आप सेरिबेलम को कट करोगे, ये आपके पूरे सेरिबेलर पेडंकल वो हेमिस्फीयर है, ये पूरा जो सेंटर में चल रहा है वो वर्मिस है, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है और दिस इज द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। क्लियर इतना? ये आप देख चुके हो। डिविजन्स में मैंने आपको बताया 3 लोब्स आर देयर। फर्स्ट इज एंटीरियर लोब, जो आपका एंटीरियर टू फिशुरा प्राइमा है, ये पूरा ग्रीन वाला है, इट लाइज ऑन द सुपीरियर सरफेस एज वेल एज द इंफीरियर सरफेस। दिस इज द पोस्टीरियर लोब एंड ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज द फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। क्लियर है? इस फोटोग्राफ को देख लो अच्छे से। अब मैंने आपको ये बताया था कि जस्ट बिहाइंड द pons एंड मेडुला देयर इज अ कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल। और ये आपको दिख रहा है, ये रियल इमेज है, इसमें arbor-vitae पैटर्न दिख रहा है। आउटसाइड जो दिख रहा है आउटर दैट इज द कॉर्टेक्स और इनर जो दिख रहा है दैट इज द मेडुला। और इनर टू मेडुला देयर इज आल्सो कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडी एंड दीज आर नोन एज सेरिबेलर न्यूक्लियाई। ठीक है। तो और एक और कलेक्शन होगा, सबसे आउटर मोस्ट ग्रे मैटर है, then white matter है and inside to white matter there are also a 4 number of nuclei there, these are known as intracerebellar nuclei और cerebellar nuclei। आइए, टाइम कितना हुआ ये बताओ? तो आना चाहिए अंदर, आगे से कभी लेट मत होना। चलो अभी तो नेक्स्ट चलते हैं।
एक बार इसको देख लो, आगे वापस रिपीटेशन होगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया जो एंशियंट था दैट इज आर्की सेरी, बातें नहीं करो, इंपॉर्टेंट है ये, आर्की सेरिबेलम। इसके कंपोनेंट में आपको पता है फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब है एंड लिंगुला, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ वर्मिस। ठीक है, अभी देखेंगे उस वर्मिस के और पार्ट्स को, याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है, बट लिंगुला एंड फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्की सेरिबेलम। इसका न्यूक्लियस होता है, देयर इज अ 4 न्यूक्लिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक होता है डेंटेट न्यूक्लियस, एक होता है एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस, एक होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस और एक होता है ग्लोबोस न्यूक्लियस। 4 intracerebellar nuclei are there in the white matter of cerebellum। अब ये जो चारों न्यूक्लियस है ये अलग अलग पार्ट ऑफ आर्की सेरिबेलम, नियो सेरिबेलम एंड पेलियो सेरिबेलम से रिलेटेड होते हैं। तो जो आपका पेलियो सेरिबेलम सॉरी आर्की सेरिबेलम है दैट इज जो उसका न्यूक्लियस होगा दैट इज द फेस्टिजियल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस फेस्टिजियस कुछ भी बोल सकते हो। इसका चीफ कनेक्शन होगा, मैंने आपको बताया, द फंक्शन ऑफ आर्की सेरिबेलम इज व्हाट, बैलेंस। तो बैलेंस कौन करता है आपका बॉडी में, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व करेगी, सो इट इज कनेक्टेड विद द वेस्टिबुलर सेरिबेलर ट्रैक्ट। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ आर्की सेरिबेलम एंड द फंक्शन क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, किसका, बॉडी का, ट्रंक मसल्स का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। सो आर्की सेरिबेलम क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम। न्यूक्लियस ऑफ दिस सेरिबेलम इज व्हाट, फेस्टिजियस एंड द आपके जो कंपोनेंट है यहाँ पर है फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लोब विद द लिंगुला एंड द कनेक्शन क्या होगा, वेस्टिबुलो सेरिबेलर इन कनेक्शन एंड द फंक्शन इज द इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रंक मसल, बॉडी पोस्चर, ये सारे इसके फंक्शन होंगे। दिस इज द आर्की सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट आते हो आप पेलियो सेरिबेलम, इट इज नॉट द न्यूएस्ट, इट इज न्यूअर, बट न्यूक्लियस कौन सा है इस पे, एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस एंड ग्लोबोस न्यूक्लियस, बोथ आर द पार्ट ऑफ पेलियो सेरिबेलम। इसमें क्या आएगा, इसमें एंटीरियर लोब आएगा, जो पार्ट, इसको याद एक बार रीड कर लेना जस्ट, होल एंटीरियर लोब एक्सेप्ट लिंगुला, बिकॉज लिंगुला कहाँ चला गया, आपके आर्की सेरिबेलम में चला गया। उसके अलावा जो वर्मिस के पार्ट होंगे वो होंगे पायरामिड एंड यूवुला। ठीक, न्यूक्लियस मैंने आपको बताया ग्लोबोस और एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस होगा, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं न्यूक्लियस इंटरपोजिटस। ठीक है, एंड द फंक्शन क्या होगा, इसका कनेक्शन क्या होगा, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, जो आप पढ़ चुके हो, पढ़े हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, क्या करता है वो फंक्शन, लिम्स को करता है, और क्या करता है लिम्स को, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, बोलो, लेकर तो आता है, स्पाइनो है तो स्पाइनो से लेके ही आएगा। मोटर है, सेंसरी है, सेंसरी है, क्या फंक्शन होता है, क्रूड टच, क्रूड टच इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, याद है आपको, पढ़े होंगे आपने स्पाइनोथैलेमिक और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट पढ़े थे। डॉर्सल कॉलम क्या कर रहा था, पोस्टीरियर कॉलम, बातें नहीं करो पीछे, क्या फंक्शन था डॉर्सल कॉलम का और क्लार्क्स और ये इस ट्रैक्ट का, ये क्लार्क्स वाला ट्रैक्ट है, प्रेशर और ओके, और पेन एंड टेम्परेचर कौन लेके आ रहा था, एंटीरियर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, जो आपका डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट होता है ये क्या करता है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, इन सबके फाइबर्स को लेके आता है, बट वो सारे जो होते हैं वो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होता है, याद है ये, याद है ये नहीं है, अनकॉन्शियस कौन लेके आता है, यही लेके आता है स्पाइनोसेरिबेलर, जितने भी प्रोप्रियोसेप्शन के सेंसेशन है बट अनकॉन्शियस, सेरिबेलम में कॉन्शियस कुछ भी नहीं होएगा, कॉन्शियस का फंक्शन कौन करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन है, बट अनकॉन्शियस सेंसेशंस हैं वो सब कौन करेगा, ये करेगा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट मींस क्या, अब अपन बात करें पेलियो सेरिबेलम, फंक्शन क्या था, लिम्ब मसल्स को और उनके पोस्चर को, इन सबको मेंटेन करके रखेगा बट अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो वो किस ट्रैक्ट के थ्रू कनेक्टेड होंगे, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के थ्रू, और स्पाइनोसेरिबेलर कितने होते हैं, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर।
So this is the connection of paleo-cerebellum. Function मैंने आपको बताया control crude movements of limb, because जो fine movements है वो function कौन करेगा, आपका cerebral cortex करता है, ठीक है. तो लास्ट अपन आते हैं न्यू सेरिबेलम. ये न्यूएस्ट और मोस्ट रीसेंट पार्ट है. इसका आपके जो पार्ट्स कंपोनेंट देखोगे, होल पोस्टीरियर लोब एक्सेप्ट pyramid and uvula, because pyramid and uvula are the parts of paleo-cerebellum. कनेक्शन इसके लिए क्या होंगे आपके पास, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट. याद है सबको? याद है? नहीं याद है? जो आपके कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किल्ड मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, दीज ऑल आर डन बाय दिस ट्रैक्ट, दैट इज द कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट. कॉर्टिको पोंटो मीन्स कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे हैं, पोंटाइन न्यूक्लियस में रिले कर रहे हैं, एंड पोंटाइन न्यूक्लियस से फाइबर्स कहाँ जा रहे हैं, सेरिबेलम में, थ्रू कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर इज इन ट्रैक्ट. ये बहुत रिसेंट ट्रैक्ट होता है. ये सारा जो आपका कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ हाईली स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स और एनिमेलिया किंगडम, और आपके जो ह्यूमन बीइंग है उनका, वो दैट इज डन बाय दिस नियोसेरिबेलम, एंड द न्यूक्लियस ऑफ नियोसेरिबेलम इज द डेंटेट न्यूक्लियस. अब मुझे बताओ इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? व्हाइट मैटर में. जो आपका मेड्यूला वाला पार्ट है, व्हाइट मैटर में एम्बेडेड होंगे. 4 आर देयर, डेंटेट, ग्लोबोस, एम्बोलिफॉर्म एंड फास्टिजियल. डेंटेट इज अ पार्ट ऑफ नियोसेरिबेलम, एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबोस आर द पार्ट्स ऑफ paleo-cerebellum, and the fastigial is the part of archicerebellum. क्लियर है इतना? फंक्शन तीनों पार्ट्स के पता चल गए, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होता है. आप फिजियो में भी पढ़ेंगे. एनाटॉमिकली जस्ट एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब है, बट सेरिबेलम के फंक्शंस और उसकी अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब फॉर एन एग्जांपल, सेरिबेलम क्या फंक्शन करता है, अपन एकदम रेगुलर ऐसे क्लास पढ़ते हैं. सेरिबेलम क्या करेगा, देखो फर्स्टली ये कैसे कंट्रोल करेगा आपके वॉलंटरी मूवमेंट को. जैसे कोई भी मूवमेंट, सपोज मेरे ब्रेन ने मुझे कमांड दिया कि मुझे यहाँ चलना है, ठीक है. सिमिलरली मेरा ब्रेन जो सेरिब्रम है वो एक कमांड किसको देगा, सेरिबेलम को भी देगा कि मेरे को क्या करना है, ठीक है. दैट इज इंटेंडेड मूवमेंट. उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटेंडेड मूवमेंट. अब क्या होगा कि मेरी मसल कहाँ जाएंगी, मसल मूवमेंट करेंगे, बिकॉज लोअर मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे और मुझे चलने के लिए बोलेंगे. लेकिन ब्रेन ने क्या डिसाइड किया है, मुझे फास्ट चलना है, ठीक है, लेकिन मेरी मसल जो है वो कैसे स्लो वॉक कर रही है. अब क्या होगा उस टाइम पर, जो आपकी मसल्स के पोस्चर वाली जो मसल है, वहां से प्रोप्रियोसेप्शन के जो सेंसेशन है वो मेरे सेरिबेलम में भी जाएंगे. तो फर्स्ट कौन सा पार्ट गया, कॉर्टेक्स ने भेजा इंटेंडेड मूवमेंट का. दूसरा कहां से चला गया, जो मोटर न्यूरॉन है वहां से एक पार्ट सेरिबेलम में वापस गया. क्यों गया, क्योंकि जो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है. तो क्या होगा उसके बाद, अगर मैं फास्ट नहीं चल रही और मेरा इंटेंडेड मूवमेंट फास्ट चलने का है, तो एक कमांड जो सेरिबेलम है वो वापस कहाँ भेजेगा, मेरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजेगा कि भाई इसको तो चलना भागना था और ये चल रही है. और सिमिलरली फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स वापस मेरे लोअर मोटर न्यूरॉन को एक कमांड देगा कि ये आपको वॉक नहीं करना, आपको रन करना है. तो दोनों में क्या करेगा, ये कंपैरिजन करेगा सेरिबेलम, व्हाट इज इंटेंडेड मूवमेंट एंड व्हाट इज एक्चुअल मूवमेंट टेक्स प्लेस. अगर सेम नहीं है दोनों मूवमेंट्स, तो ये वापस से आपके मसल्स को भी कमांड करेगा और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी कमांड करेगा. और यही हैबिट, इसी को ही आप बार बार करते हो तो कोई भी स्किल मूवमेंट इसी उससे डेवलप होता है, इसी फंक्शन से डेवलप होता है, क्योंकि सेरिबेलम क्या करेगा, पूरा इसके पास कंट्रोल है व्हाट इज एक्चुअल मूवमेंट टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज इंटेंडेड मूवमेंट. समझ में आई बात, या वापस बोलना है? वापस बोलना है. एक तो आपके पास कोई कुछ भी चीज है, आपको ये, मेरे को ये हाथ उठाना है, फिर यहाँ से मेरे को ग्लास उठाना है, ये मेरा इंटेंशन है, मुझे ये उठाना है. मेरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, मेरे यहाँ की मसल को कमांड करेगा कि आपको ये उठाना है, ठीक है. दूसरा, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक सिग्नल कहाँ भेजेगा, सेरिबेलम को भेजेगा. क्लियर है इतना? ये मैंने ग्लास को उठा लिया, अगर मैंने सिंपलीफाई वे में उठा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं उठा पाई या मैंने कुछ गलत किया, तो उस टाइम पर यहाँ से एक कमांड जाएगा मेरे सेरिबेलम में, और सेरिबेलम उस मूवमेंट को सही करके क्या करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को वापस कमांड करेगा, और इस जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है इनको भी कमांड करेगा और सही में एक्शन करूंगा. समझ गए? इसको बोलते हैं कंपैरेटर मैकेनिज्म ऑफ सेरिबेलम.
तो ऐसे करके ये पूरे स्किल्ड और वॉलंटरी मूवमेंट को सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल करके रखता है। क्लियर है इतना? और ये सब किसका फंक्शन हुआ? कौन से वाले सेरिबेलम का? नियो सेरिबेलम का। ठीक है, और ये ट्रैक्ट कौन से यहाँ पे काम आ रहे? कॉर्टिको पोंटो सेरिबेला। न्यूक्लियस कौन सा है आपके पास? डेंटेट न्यूक्लियस है। कनेक्शन क्या है? वही कॉर्टिको पोंटो सेरिबेला। नेक्स्ट, so what are the functions of cerebellum? Balance and equilibrium of trunk muscle, motor जो आपकी controls the crude movements of limb muscles and skilled movement का coordination, these are the functions of cerebellum। अगर ये नहीं होते, यहीं पर इसकी अप्लाइड देखेंगे, अगर मेंटेनेंस और इक्विलिब्रियम नहीं होंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं एटेक्सिया हो जाता है, ट्रंकल एटेक्सिया। मीन्स जो पर्सन है वो सीधे खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो गिरेगा। ठीक है, और जब वो वॉक करेगा तो उसका जो गेट होगा वो स्टैगरिंग गेट होता है, उसमें जो उसके लेग्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे और वो नहीं चल पाएगा। दैट इज द ट्रंकल एटेक्सिया। सेकेंड जो आप देख रहे हो, जो पेलियो सेरिबेलम में अगर कोई इंजरी या ट्यूमर या कोई ब्लड सप्लाई या कुछ भी हुआ तो उस टाइम पे आपकी जो मोटर एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको क्या होता है? हाइपोटोनिया हो जाता है, हाइपोटोनिया। लास्ट जो आपको दिख रहा है नियो सेरिबेलम में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस टाइम पर आप कोई भी स्किल मूवमेंट नहीं कर पाते। उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे फिंगर नोज टेस्ट करते हैं, उसमें क्या करेंगे कि मेरे को फिंगर से नोज को टच करना है, बट अगर मेरा नियो सेरिबेलम फंक्शन नहीं करेगा तो या तो मैं नोज से पहले ही रुक जाऊंगी या नोज को ऑफ शूट कर दूंगी। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं फिंगर नोज टेस्ट। एक होता है, एक अप्लाइड होती है डिसडायडोकोकाइनेसिस। क्या होता है? डिसडायडोकोकाइनेसिस। उसमें क्या होगा? कोई भी ऑल्टरनेट मूवमेंट, जैसे अपन सुपिनेशन प्रोनेशन सुपिनेशन प्रोनेशन सुपिनेशन प्रोनेशन ये कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर नियो सेरिबेलम इंजर्ड है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये ऑल्टरनेट मूवमेंट अपन नहीं कर पाते। तो और क्या होगा? आपकी स्पीच होगी वो स्लर्ड हो जाएगी, आप पॉजेस गलत जगह पे लोगे। तो मेनली जितने भी स्किल्ड मूवमेंट है वो सब नहीं हो पाएंगे अगर इंजरी हुई है। कहाँ पे? नियो सेरिबेलम में। पेलियो में हुई है तो हाइपोटोनिया होगा और लिम्ब का एटेक्सिया होगा। अगर आर्की सेरिबेलम में इंजरी हुई है तो ट्रंकल एटेक्सिया होगा। So these are the applied of cerebellum. Clear? First you should know about the parts, morphological जो आपके parts हैं उनको पता होना चाहिए आपको, and each part is having its own connection, its own nucleus and its own function। अगर वो function नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको उसमें डिस्क्राइब करनी है। तो अप्लाइड और फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपन गंदगी पे। चलो, मैंने आपको बता दिया। अब एक बार इस चीज को देखो, तो अपन जो देख रहे थे ये क्या है? डायग्राम। इस डायग्राम में सेरिबेलम को बुक की तरह ओपन कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आया, सेंटर में आपके पास वर्मिस आया और लैटरली आपके पास क्या आ गए? सेरिबेलर हेमिस्फीयर आ गए, और इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इन पार्ट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नाम नहीं याद रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेनली जो आपके आर्की, पेलियो, नियो सेरिबेलम में जो जो पार्ट्स के नाम आते हैं बस वो आप याद रख लेना। ठीक है, इस टेबल को देख लो एक बार। डन। बुक में बनी हुई बुक का ही फोटोग्राफ है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलो अपन हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिबेलम डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर दूंगी इसको मैं। ये देखो, सी दिस इज डायग्राम ऑफ योर विश्राम सिंह ओनली। इसमें आपको क्या देखना है? आपने हिस्टो पढ़ ली है सेरिबेलम की, क्या था आपने बनाया भी था डायग्राम जो कि बहुत गंदा बना था। So outermost layer is the molecular layer, then Purkinje cell layer and then granular layer। अब ये कहाँ बड़े हैं? ये सब लेयर्स कहाँ की है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, सेरिबेलर कॉर्टेक्स की। इट इज हैविंग 3 लेयर। outermost is molecular layer, then Purkinje cell layer, then granular layer।
तो आउटर मॉलिक्यूलर लेयर में आप देख रहे होंगे, डायग्राम को समझना, फर्स्ट आपको ये दिख रही है, जो सेल दिख रही है, दैट आर Purkinje cells एंड दे लाई इन द Purkinje cell layer, सिंगल सेल लेयर इज देयर ओनली, ठीक है, फ्लास्क शेप सेल्स है, सिंगल सेल लेयर थिक है, so these are the Purkinje cell layer, but their dendrites extends up to the molecular layer, दिख रहे हैं आपको बहुत सारे dendrites, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर लेयर में you are having both two cells are also there, these are the stellate cell and basket cell, so molecular layer consists of two cells, stellate cell and the basket cell and the dendrites of Purkinje cells, clear है इतना। then in the Purkinje cell layer similarly single layer thickened and the flask shaped cells is there, these are the Purkinje cell layer, ये पूरी Purkinje cell। then in the granular layer you have Golgi cells and granule cells, so two cells are there in the granular layer, Golgi cell and granules है। एक लाइन हमेशा याद रखना, जितनी भी सेल्स है सेरिबेलम में, these all are inhibitory in nature, सेरिबेलम मेनली क्या करता है, इनहिबिशन कराता है, एक्सेप्ट दीज ग्रेन्यूल सेल्स, ठीक है, कभी भी मत भूलना, all cells of the cerebellum, cerebellar cortex are inhibitory in nature except granular cells, these are excitatory in nature। ये क्या करेगा, क्यों होगा ये बताओ, कुछ सोच के बताना, बाद में बताना, अभी तो टाइम नहीं होता। देन ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन सेरिबेलार ग्लोमेरुलस, और कहाँ होता है ग्लोमेरुलस, किडनी में भी होता है, तो यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस होता है, दैट इज नोन एज सेरिबेलार ग्लोमेरुलस। मेन तो आपको क्या करना है, हिस्टोलॉजिकली तीनों लेयर्स के नाम पता होने चाहिए, तीनों लेयर्स में कौन कौन सी सेल्स पता होनी चाहिए, उनके एक्सोन्स और डेंड्राइट कहाँ होते हैं वो पता होना चाहिए। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर आपको टू टाइप के फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर द क्लाइंबिंग फाइबर एंड दीज आर द मोजी फाइबर्स। ये क्या है, एफरेंट टू द सेरिबेलम। एफरेंट क्या होगा सेरिबेलम के लिए, क्लाइंबिंग फाइबर्स। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन बेसिक सुन लो एक बार, क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड मोजी फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर्स कहाँ से आए हैं, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस नाम सुना है आपने, वहां से जो फाइबर्स आते हैं वो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं, और जितने भी फाइबर्स जो कि एंटर कर रहे होते हैं सेरिबेलम में एफरेंट होते हैं, दीज ऑल आर द मोजी फाइबर्स। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। क्लाइंबिंग फाइबर क्या कर रहा है, डायरेक्टली किसके साथ साइनेप्स कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, देखो Purkinje सेल के डेंड्राइट्स के साथ, दिख रहा है सबको करता हुआ। मोजी फाइबर क्या कर रहे हैं, मोजी फाइबर जाकर आपके पास ग्रेन्यूल सेल के साथ और यहाँ से गोल्जी सेल के साथ साइनेप्स करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। सो इन द सेरिबेलर ग्लोमेरुलस देयर इज अ termination of mozi fibers, axons of Golgi cells and dendrites of granule cells are there. So these three structures constitute to form cerebellar glomerulus. अब क्या हो रहा है, जो ये तो इनपुट था सेरिबेलम के लिए, जो आउटपुट होगा सेरिबेलम का वो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स ऑफ Purkinje सेल्स करेंगे, ये दिख रहा है, और कहीं से भी आउटपुट नहीं आ रहा। Purkinje सेल्स के जो एक्सोन है, दीज आर मेनली इफरेंट ऑफ सेरिबेलम, दिख रहा है सबको। तो ये इफरेंट क्या करेंगे, ये इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे और मेन जो आउटपुट होगा वो जनरेट होगा सेरिबेलम का। तो इन जनरल आपके पास सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, आउटर मॉलिक्यूलर लेयर, मिडल Purkinje cell layer and inner granular layer. Outer molecular layer is having dendrites of Purkinje cell or stellate cell and basket cell. Purkinje cell layer is a single cell layer thick that is made up of flask shaped Purkinje cell layer, while the granular cell layer is having Golgi cell and granule cell. Granule cell is only the excitatory in nature, all the cells of cerebellum are inhibitory in nature. Afferent कहाँ से आ रहा है, through climbing fibers and mossy fibers. Climbing fibers are fibers that arises from the inferior olivary nucleus. These are the climbing fibers only. Rest of all are the mossy fibers. ठीक है, climbing fiber एक climbing fiber एक आपकी Purkinje cell के साथ रिलेटेड है, जबकि mossy fiber क्या कर रहा है, फर्स्टली mossy fiber आपके synapse कर रहा है granule cell के साथ और Golgi cell के साथ, and they further synapse with the dendrites of Purkinje cell.
सो वन क्लाइंबिंग फाइबर एक्साइट किसको कर रहा है, आपके एक पुर्किंजे सेल को, जबकि एक मॉजी फाइबर थाउजेंड ऑफ पुर्किंजे सेल को एक्साइट कर सकता है। समझ में आया ये बात? ये तो था इनपुट। आउटपुट में कुछ भी नहीं है, ऑल द एक्सॉन्स ऑफ पुर्किंजे सेल इफ्रेंट फॉर्म करेंगे जो कि आपके इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे और वो अपना फंक्शन करके फाइबर्स जहां भी उनको भेजना है, आर्की में भेजना है, पेलियो में भेजना है और नियो में भेजना है। एक बार बुक से रीड कर लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना वापस से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अब मैंने सिंपल कोशिश किया है कि मैं आपको बता दूं। देन एक चीज आप खुद एक बार बुक से रीड कर लेना, सेरिबेलर पेडंकल जो है आपके पास, यू हैव सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल एंड इंफीरियर। ग्रॉसली आपको मैंने बेसिकली तो बता दिया है, बट उसमें किस टाइप के फाइबर्स होते हैं वो आपको याद रखना है। एफरेंट कौन कौन से ट्रैक्ट होंगे, जस्ट आपको नाम याद रखने हैं उसके, एफरेंट एंड इफरेंट, क्योंकि आपके ट्रैक्स अभी शायद पूरे नहीं हुए हैं। ट्रैक्स हो गए तुम्हारे, पूरे नहीं हुए ना, तो जब एक बार ट्रैक्स हो जाए तो सारे सेरिबेलर पेडंकल्स हैं उनके सारे फाइबर्स को एक बार जस्ट बुक से रीड कर लेना। उसके बाद अपन आते हैं अप्लाइड पर। अप्लाइड में वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेबल को अच्छे से देख लो। ये आपको न्यूक्लियस है, ये डेंटेट है, ये दोनों ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म है, और ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस है। ठीक है, इस टेबल को अब देखो आप फटाफट से जल्दी से, ये आपको हमेशा आना चाहिए। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बोलो। अच्छा हाँ, आर्की सेरिबेलम में एक तो ट्रंकल एटेक्सिया होगा, सेकंड अप्लाइड जो होगी निस्टैग्मस, जिसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आईबॉल होता है। ठीक है, सेकंड जो आपके पास है पेलियो सेरिबेलम, उसमें ट्रंकल और गेट एटेक्सिया होगा। उसके बाद जो नियो सेरिबेलम है लिम्ब एटेक्सिया होगा। उसके साथ साथ आपके पास डिस्मेट्रिया, मतलब आप पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। सेकंड है डिसडाइडोकोकाइनेसिस, दैट मींस द अल्टरनेट मूवमेंट कैन नॉट टेक प्लेस फास्टली। एंड द लास्ट इज इंटेंशनल ट्रेमर्स, मतलब आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो और वहां पर आपके ट्रेमर्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बेसल न्यूक्लियस की होगी। तो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया बोथ क्या करते हैं, आपके मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, बट सेरिबेलम और उसमें क्या फंक्शन होता है, क्या होता है, ये तो मसल टोन को क्या कर रहा है, ये इसमें जो ट्रेमर्स आएंगे वो इंटेंशनल ट्रेमर आ रहे हैं, और वहां पर आपके पास जो ट्रेमर्स आते हैं वो होते हैं आपके रेस्टिंग ट्रेमर। ठीक है, तो दोनों को आप क्लिनिकली जो पेशेंट आया है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पर इंटेंशनल ट्रेमर मींस आप कोई फंक्शन करोगे तब ट्रेमर होगा, और जो बेसल गैंग्लिया पाल्सी के लोग होते हैं उसमें रेस्टिंग स्टेज में भी ट्रेमर्स आते रहते हैं। इसको अच्छे से देख लो, इस टेबल को, अब इम्पोर्टेंट है। डिसआर्थरिया मतलब फ्लड स्पीच, मीन्स आप बोलेंगे बट आपको प्रॉपर कहाँ पॉज लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सारे जो ये मूवमेंट्स है वो स्किल्ड मूवमेंट है। पीछे लास्ट दिख नहीं रही आपको स्क्रीन? डन। अब एक डायग्राम और, ब्लड सप्लाई में आप यू हैव थ्री आर्टरीज, फर्स्ट इज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, देन एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। Superior cerebellar artery supplies the superior surface of cerebellum and it is a branch of basilar artery. ठीक है, similarly anterior inferior cerebellar artery supplies the anterior part of inferior surface of cerebellum, that is also a branch of basilar artery, while the posterior inferior cerebellar artery it supplies the posterior part of inferior surface of cerebellum and that is a branch of vertebral artery. Clear? So this is the arterial supply or blood supply of cerebellum. इस डायग्राम को दिखा रही हूँ मैं एक बार, इसको देखो।
ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज द डेंटेट न्यूक्लियस, इस पर रीड ही कर लो, 5 मिनट में हो जाएगा। ये डेंटेट न्यूक्लियस है, इट इज द लार्जेस्ट इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियस। इट इज जो शेप है इसकी क्रम्पल्ड बैग जैसी है, जिसका हाइलम मीडियली फेस्ड है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको इसका हाइलम। उसके बाद ये लार्जेस्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ नियोसेरिबेलम, इसको रीड कर लो, बहुत पढ़ चुके हो तुम, पूरा बता चुके हो मैं, जस्ट रीड इट। अब यहाँ से अच्छा एक चीज और, जो आपका नियोसेरिबेलम है वो कनेक्शन किसके साथ होगा, रेड न्यूक्लियस और थैलेमस के साथ, ठीक है। पेलियोसेरिबेलम का रेड न्यूक्लियस के साथ होगा, और जो आपका आर्की सेरिबेलम है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि आर्की क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट होगा उसके लिए। सेकंड जो है आपका कौन सा है, पेलियोसेरिबेलम। पेलियोसेरिबेलम में कहाँ से किससे कनेक्टेड है, ये स्पाइन से कनेक्टेड है, और रेड न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये अपने रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट भी इससे फंक्शन करेगा, सो मेनली स्पाइनोसेरिबेलर और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है। लास्ट जो नियोसेरिबेलम है ये क्या करेगा, रेड न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड है, थैलेमस से भी कनेक्टेड है, और आपके कॉर्टिको-पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट से भी। कर दूं चेंज? एक बार बुक से पूरा चैप्टर रीड करना, आज ही करना। चलो इसको भी देख लो। सेरिबेलर पेडंकल्स पे शॉर्ट नोट आता है, सो ईच एंड एवरी फाइबर्स प्रेजेंट इन द सेरिबेलर पेडंकल यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। एक बार आज ही एक टेबल बना लेना और उसमें लिख लेना। Globose, amboliform, both functions of both are same. इन सब न्यूक्लियस में एफरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं और इफ्रेंट कहाँ से आ रहे हैं। एफरेंट कहाँ से आएंगे, जहाँ का वो पार्ट है। एफरेंट अगर ये we are talking about fastigial nucleus, तो afferent is coming from the archy cerebellum. Efferent कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसको vestibular connection रखना है, so efferent goes to the vestibular or reticular formation. Reticular formation is responsible as a part of limbic system और arousal और उस सबसे related होता है, तो these are the connection of this fastigial nucleus. Afferent and efferent, just you should firstly you should know structure of this particular nucleus, location of particular nucleus, part of particular nucleus, afferent for the particular nucleus, efferent for the particular nucleus, and the function of the particular nucleus. So अगर dentate is very important because neocerebellum का part है, so short note can be asked. अब एक बार इसको भी देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाएगा तो सही रहेगा। ये सब फाइबर्स हैं जो कि आपके सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में लोकेटेड होते हैं। एफरेंट भी होता है, इफ्रेंट भी होता है। एक चीज मैं बता रही हूँ वो याद रखना, बातें नहीं, लास्ट जो आपका सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है वहां पर कौन सा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, एंटीरियर। जबकि नेक्स्ट देखोगे आपके पास ये है आपका इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, यहाँ पर पोस्टीरियर सेरिबेलर ट्रैक्ट होता है। तो ये डिफरेंस कभी भी मत भूलना, उल्टा नहीं करना। superior is having anterior ventral spinocerebellar tract while the inferior is having posterior spino. अब यहाँ पर इसको याद करने की एक ट्रिक बता सकती हूँ थोड़ा सा, देखो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल सेरिबेलम से किसके थ्रू किससे कनेक्टेड है, मिड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होंगे ना, लाइक टेक्टो सेरिबेलर, रूब्रो सेरिबेलर, ये सब कहाँ आएंगे आपके सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में। इंफीरियर में आप देखोगे तो मेडुला के जो न्यूक्लियस होंगे, ऑलिवरी न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वो सब वहां आएंगे, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर देयर नेम और फंक्शन अगर याद रहे तो ठीक है। अच्छा एक चीज, मिडल सेरिबेलर पेडंकल में कोई भी इफ्रेंट नहीं होता है, ठीक है, ओनली एफरेंट इज देयर। सिमिलरली नहीं, अलग से है। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में आप देख लेंगे पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, क्यूनियो दैट मींस पार्ट ऑफ क्यूनिएट न्यूक्लियस,
ऑलिवो ऑलिवरी न्यूक्लियस, रेटिकुलो रेटिकुलर न्यूक्लियस, वेस्टिबुलो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, दे ऑल लाइज इन द मेड्यूला। तो गलत मत करना, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट सुपीरियर में होगा, इंफीरियर मिडल में नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ एक बार पढ़ना।